हो गया. Welcome friends. Welcome to the course of Industrial Engineering. We already see that the definition as well as some properties of industrial engineering. Now, from today onward, we are going to study function of industrial engineering and field of application of industrial engineering. We already seen in our last lecture that MMEE, the whole industrial engineering is based on MMEE. We discuss about the full form of MMEE and the definition based on MMEE. What is MMEE? Man, material, energy, and equipment. In whole industrial engineering subject, we talk about only these four terms: man, material, energy and equipment. इन चारों के अलावा हम लोग कुछ और बात नहीं करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में. ठीक है. आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट and most important regarding our AKTU or external exam. Point by point, we go into the function of industrial engineering. Then though it is a theory subject, write with me what we are study in the lecture. First, write function of industrial engineering. Then we are going to discuss different function, but there is more than 10 or 20 function of industrial engineering. Here we can discuss only 10. Okay, 10 or 9 depending upon the time. Now the first function. What is first function? Development of time standard, costing and performance standard. What is development of time standard, costing and performance standard. What is the meaning of these terms? First, time standard. Whether I don't know you are going for some assembling plant or not. If you are going or if you will to go on assembling plant, say for example, if you are going for Maruti assembling plant, you will see that there is different plant or different platform. Means in first platform there is some assembling, in second, in third, in fourth, and last we will get a final product, that is full assembled car. Got it? If in platform 1, P1, P2, P3 and so on, and last platform which is final assembled car, time is allotted for each platform. You cannot say for example if it is 5 minute stoppage for conveyor belt, all are on in moving position with the help of conveyor belt. So for example, is P1 is 5 minutes at platform P1. Our conveyor belt is stopped for 5 minutes. You have to assemble all the particular parts of the car that you have told to do that.
you have only 5 minutes. After 5 minutes, automatically conveyor belt move toward the point platform P2. And say for example, the time for P2 is 3 minutes. Means you are going to assemble some small part or some part which take less time for assembling. Now conveyor belt move so that our car ready in some specific time. Say for example, in 2 hour, 1 hour, 1 hour 30 minutes, some specific time is there for preparing a full car. From time standard, we specify how our time is measured for assembling all these parts. टाइम स्टैंडर्ड की सहायता से हम लोग कोई वर्क कैसे होता है, कितने टाइम में होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम, उसके हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं और उस वर्कर को उस प्लेटफॉर्म पे उतने टाइम के अंदर ही वो काम करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? टाइम स्टैंडर्ड। सेकंड आते हैं कॉस्टिंग। नाउ अब हमारी कार बन के तैयार हो गई लास्ट में, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी वो डिसाइड करना एक अलग क्राइटेरिया है। वो भी डिसाइड कौन करता है? एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर। गॉट इट? एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर डिसाइड करता है कि टाइम स्टैंडर्ड क्या होगा किसी काम को करने के लिए एंड कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए इस कार के लिए। तो इसमें वो डिफरेंट चीजें इंक्लूड करता है। से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल क्या क्या है, ठीक है, रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट था, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही कार में सब ऐड कर लेगा, ठीक है, वो ऐसे ऐड करेगा कि उसका जो कॉस्टिंग है पूरा मिला के वो कम हो और कार की कीमत हमारी उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग करता है कौन? एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर। और भी चीजें होती हैं जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं और फाइनल कॉस्टिंग ऑफ एनी कार और इक्विपमेंट। ठीक है, तो फाइनल कॉस्टिंग के लिए बहुत ढेर सारी होती हैं। और क्या होता है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होता है? अब डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टर्म्स हम लोग का या जो लेबर होते हैं उनके परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट किया जाता है। से फॉर एग्जांपल अगर P1 प्लेटफॉर्म पे कोई एक एक्स आदमी है, ठीक है, तो दिन भर में वो विदाउट डिले कितना असेंबल किया, ठीक है, तो वो भी एक क्राइटेरिया है हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का। अगर उस स्टैंडर्ड से कम किया तो उस आदमी का एक्स मैन जो भी है, एक्स वाई जो भी है, उस आदमी का स्टैंडर्ड हमारा उस दिन के लिए बिलो हो जाएगा हमारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पहला फंक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। तो एक बार और राइट कर लेंगे, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ टाइम स्टैंडर्ड, कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। समझ में आया? ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। फंक्शन नहीं चलेगा ये सब। अगला फंक्शन क्या हो सकता है? अगला फंक्शन सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस एंड असेंबलिंग मेथड। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस एंड असेंबलिंग मेथड। सिर्फ एग्जांपल अब आते समझते ये क्या है? कोई प्रोडक्ट एक्स बनाना हम लोग को, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए कितने डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग को गुजरना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हम लोग क्या बताएगा? सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम लोग को ये चेयर बनाना है,
अब क्या कर रहे हैं, चेयर बनाना है। तो चेयर बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल खरीदना भी एक प्रोसेस ही है, ठीक है। अब चेयर कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो उसको डिजाइन करेंगे हम लोग। 1 मिनट, उसको डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद डिजाइन, अब डिजाइन के बाद कैसे उसको उस ढांचे में कन्वर्ट किया जाए, बाय मोल्डिंग। मोल्डिंग में भी डिफरेंट मोल्डिंग होता है। यहाँ पे बेसिक में हम लोग अंदर डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे बस मोल्डिंग लिखते हैं, ठीक है। मोल्डिंग, या हो सकता है कहीं कहीं कास्टिंग से बनाना हो, कास्टिंग। तो वो कौन से प्रोसेस हैं, कास्टिंग के बाद या मोल्डिंग के बाद हम लोग मान लो कूलिंग करना हो, ठीक है। फिर उसको क्या करना हो, फैब्रिकेट, मतलब ग्लू से चिपकाना हो डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है, ग्लू से या इधर हीट से, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएगा सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस में, ठीक है। या जैसे हम लोग अभी एग्जांपल लिए कार का, तो कार में क्या है, असेंबलिंग मेथड, कौन कौन से असेंबलिंग मेथड हम लोग को यूज करने हैं, ठीक है। तो कार के लिए क्या है, सबसे पहले प्लेटफॉर्म आएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे हमारा चेसिस है, कार का चेसिस आया, फिर उस पे क्या हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऊपर का फ्रेम ऐड किए, फिर अगले प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वहां पे हेडलाइट असेंबल हुआ, फिर आगे गया, ठीक है, इंजन असेंबल हुआ। ये सब होता रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट असेंबलिंग मेथड, ठीक है, क्या यूज करना है वो हम लोग कौन बताएगा, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, यानी कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका जो टूल होगा, ठीक है, और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे, ठीक है, उसका सिलेक्शन एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर ही करेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम लोग डब्ल्यू टेलर की बात कर रहे थे, ठीक है, शायद बात पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और ये कौन है, डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर पूरा नाम इनका, टेलर के नाम से जानते हैं इनको हम लोग, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये एक ग्लास फर्नेस में काम कर रहे थे। ही इज रिनोवेड मैकेनिकल, ही वाज अ रिनोवेड मैकेनिकल इंजीनियर एंड ही वाज वर्किंग इन अ ग्लास फर्नेस, ठीक है। तो ग्लास फर्नेस में काम कर रहे थे। तो ग्लास फर्नेस में हम लोग को क्या करना होता है, जो चार्ज है, चार्ज जहाँ पे कोल होता है, कोल को अंदर डालते हैं, ठीक है, इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, और जो आयरन होता है उसको पिघला के, जो रॉ आयरन होता है उसको पिघला के हम लोग जो शुद्ध होता है अच्छे आयरन में उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये काम होता है ब्लास्ट फर्नेस में। आप लोग क्लास 11-12 में पढ़े होंगे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में, ठीक है। तो वो ब्लास्ट फर्नेस पे काम कर रहे थे बहुत सालों पहले, 1869 के आसपास की बात है, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो लेबर वहां पे काम कर रहे हैं, तो उस समय सोवेल, सोवेल जिसको हम लोग बोलते हैं बेलचा, हिंदी में, हिंदी में बेलचा समझते होंगे, सोवेल उसको बोलते हैं हम लोग, सोवेल, ठीक है। जो सोवेल का डिजाइन था वो ऐसे हपेजार्ड था कि एक तो जो लेबर थे वो थक जाते थे, और उस समय जो थकने के बाद अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम लोग को उस समय परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या टाइम जो स्टैंडर्ड है वो हमारा इतने टाइम इतना काम करना है वो नहीं हो पाता था,
ठीक है, जिसको लोग टाइम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, वो उस स्पेसिफाइड टाइम में उतना काम नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, शोवेल को डिजाइन किया। सोचिए इतना छोटा चीज जिसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं, शोवेल को डिजाइन किया गया। डिजाइन करने के बाद उन्होंने देखा कि जो थकान होती है लेबर को, उस शोवेल को उठा के इधर शोवेल्स में जो कोल है उसको उठा के ग्लास फर्नेस में डालने में वो लगभग 25% रिड्यूस हो गया। 25% क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ठीक है। उस शोवेल को रीडिजाइन करने से सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजों पे, बारीकियों पे ध्यान देने से हम लोग का टाइम बच जा रहा है और जो लेबर है वो एक्स्ट्रा काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो शोवेल के डिजाइन से ही उन्होंने वहां पे 25% जो लॉस होता था, वर्क लॉस, उसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग टूल को डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ टूल डिजाइन में हम ये डिस्कस कर रहे थे शोवेल डिजाइन। तो टूल को डिजाइन करना पड़ेगा कि हमारा टूल कैसा हो कि स्मूथली काम हो, ठीक है। और असेंबलिंग मेथड क्या होना चाहिए कि पहले क्या असेंबल करें, बाद में क्या असेंबल करें, कि चीजें स्मूथ एंड फास्ट हो, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिजाइन ऑफ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्लांट लोकेशन, layout of building, machine and equipment, material handling system, raw material and finished good storage facilities, ठीक है। इसमें बहुत चीजें हैं, डिजाइन ऑफ प्लांट लेआउट, लोकेशन, availability of raw material, और क्या, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड सो ऑन। यानी एक प्लांट खोलने के लिए हम लोगों को इतने चीजें देखने पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को कोई स्टील प्लांट खोलना है, ठीक है, कोई स्टील प्लांट खोलना है, ठीक है, तो स्टील प्लांट के रॉ मटेरियल क्या होता है, जर्नली आयरन होते हैं, ठीक है, आयरन, ठीक है। जर्नली आयरन क्यों बोले, क्योंकि अब ऐसे टेक्नोलॉजी भी आ गए हैं जो कबाड़ होते हैं उनकी सहायता से हम लोग स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो स्टील प्लांट ओपन करने के लिए स्टील प्लांट हम लोग वहीं ओपन करेंगे जहां पे हम लोग को आयरन और इजिली अवेलेबल हो। आप लोग ने कभी सोचा है कि मोस्टली स्टील प्लांट झारखंड, उड़ीसा या ऐसे ही जगहों में क्यों हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे आयरन और मिलते हैं, ठीक है। आयरन की एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, इसलिए वहां पे स्टील प्लांट ज्यादा है ऐसे राज्यों में, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा साइड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे इजिली अवेलेबल है आयरन और। तो सबसे पहले स्टील प्लांट ओपन करने के लिए लोकेशन देखेंगे, और लोकेशन में भी ऐसा लोकेशन जहां पे आयरन और आराम से आ सके। से फॉर एग्जांपल हम लोग किसी ऐसी जगह ओपन करते हैं जहां पे आयरन और नहीं मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, वहां स्टील प्लांट ओपन करें तो हम लोग को आयरन और किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने में इतना ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा कि वो स्टील प्लांट खोलने कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, खोल ही नहीं पाएंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी आयरन ओर को ले आने के लिए। छत्तीसगढ़, झारखंड से आयरन अगर जम्मू कश्मीर जाएगा तो कितना ट्रांसपोर्टेशन लॉस होगा,
और वही हम लोग अगर छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा में ही हैं तो वहां से एक जगह दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जगह हम लोग अपना प्लांट ओपन करेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो। ठीक है, ऐसे ही स्टोरेज कैपेसिटी भी वहां पे होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी अगर जो हमारा एंड प्रोडक्ट है स्टील प्लांट में, अगर एंड प्रोडक्ट हमारा स्टील का रॉड या सरिया जो है वो बन चुका है तो फिर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है हमारी, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। सामान रखने की क्षमता है या नहीं है उसमें, वो भी। प्लांट लेआउट हम लोग ऐसे चूज करेंगे कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो और मिनिमम लॉस हो, यानी जगह का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और जो लॉस है वो कम हो। ठीक है, इक्विपमेंट हम लोग कौन सा यूज करेंगे वो भी इसमें आता है, यानी एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर हम लोग को इतने सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। सोचिए कितना बड़ा काम है एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का। अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, डिजाइन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, क्वालिटी एंड प्लांट मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है, फिर रिपीट कर रहे हैं, लिख लीजिए, डिजाइन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, क्वालिटी एंड प्लांट मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सब भी फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आता है। कंट्रोल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, और कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री एंड सो ऑन। ठीक है, लिख तो लिए हैं, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग, यानी कितने इन्वेंट्री हम लोग को मंगाने हैं। ठीक है, एक टाइम पे। इन्वेंट्री क्या होता है डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे के लेक्चर में। अभी बस इन्वेंट्री आप समझिए कि जो रॉ मटेरियल है उससे रिलेटेड है, और जो प्लांट में हम लोग को डिफरेंट यूजेज होंगे उस पर डिपेंड करता है, वो हम डिटेल में एक अलग यूनिट लिया इन्वेंट्री, उस पर हम लोग समझेंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे, कैसे प्रोडक्शन हो। ठीक है, कि मिनिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी यानी अगर आप कोई प्लांट खोलेंगे तो क्वालिटी हमारी क्या होनी चाहिए, एकदम अच्छी। ठीक है, मेंटेनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस। ठीक है, तो मेंटेनेंस जो इक्विपमेंट की है वो बार बार अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब किस में आता है, फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस। अगला पॉइंट लिखेंगे, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। अगला पॉइंट जैसे कि वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस पॉइंट लिख देंगे, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेंगे, डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ जॉब इवोल्यूशन सिस्टम। डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ जॉब, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ जॉब सिस्टम। और जॉब इवोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो जॉब इवोल्यूशन सिस्टम यानी किसको कौन सा काम दिया जाए। ठीक है, एक इंजीनियर है एक प्लांट में, एक एमबीए होल्डर मैनेजर है, लेबर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, तो इन लोगों को कौन सा जॉब अलॉट किया जाए कि बेस्ट वे में वो लोग अपना काम कर सके। तो मैनेजर को कौन सा काम देना है, ठीक है, टू मैनेज द प्लांट, जो इन प्रोडक्ट है उसको सेल, ये करना किसका काम है, मैनेजर का।
इंजीनियर का मेंटेनेंस का काम है, ठीक है। कोई अगर लाइन में गड़बड़ी है, ठीक है, तो वो काम है मेंटेनेंस, क्वालिटी एंड लेबर वर्क। जो भी काम है लेबरों को दिया गया, ठीक है। तो ये अलग अलग जॉब सिस्टम है, किसको कौन सा काम अलॉट किया जाए कि बेस्ट सुटेबल वे में वो हो पाए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टॉलेशन ऑफ वेज इंसेंटिव स्कीम। वेज एंड इंसेंटिव स्कीम। सबसे पहले वेज समझते हैं। वेज क्या है? जो आप काम करेंगे उसके एवज में जो आपको पैसा मिला, वो क्या है? वेज, ठीक है। वेज जनरली वीकली या डेली बेसिस में सकता है। इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या है? एक्स्ट्रा वर्क या कुछ एक्स्ट्रा काम करने के एवज में जो हम लोग को मिलता है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ मनी और रिवार्ड, ठीक है। और ये जनरली ये मनी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम हम लोगों को याद करना होगा एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर कि वेज और इंसेंटिव कब, कैसे, किसको देना है, वो एक क्राइटेरिया, वो एक स्कीम सेट हो सके, ठीक है। वेजेस तो आप लोग दे लेंगे। इंसेंटिव के लिए से फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स्ट्रा नाइट वर्क कर रहा है, अगर एक इंडस्ट्री में है तो वहाँ डे एंड नाइट दोनों काम चल रहा है, तो नाइट वर्क के लिए आप इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए? इंजीनियर या लेबर के लिए, ठीक है। या सेल्स में कोई है तो सेल्स में ये कौन? मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये किसको और कितनी मात्रा में इंसेंटिव देना है वो डिसाइड करेगा कौन? एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर, ठीक है। ये फंक्शन है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ वैल्यू एडिशन, evolution of value addition and analysis system। वैल्यू एडिशन इंजीनियरिंग है ये, या एंड इवोल्यूशन सिस्टम, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन आखिरी में होता है क्या है ये समझते हैं। से फॉर एग्जांपल ये चौक है, ठीक है। चौक कैसे बनता है? एक पाउडर होगा, ठीक है। पाउडर को हम लोग मिक्सअप कर लिए और मिक्सअप करके एक मोल्ड में डालने के बाद ये एक चौक बन जाता है, ठीक है। तो चौक बनाने के लिए हम लोग क्या किए? पहले पाउडर लिए, ठीक है। पाउडर को बाइंडर के साथ मिक्स किए और उसको मोल्ड में डाल के एक चौक के फॉर्म में निकाल लिए। तो उस पाउडर में वैल्यू एडिशन किए। किसमें? पाउडर में। जो भी पाउडर है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन किया गया और फिर वो चौक मिल गया। यानी हम लोग पाउडर को लेके आए और उससे लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या किए? चौक। चौक के लिए इस पाउडर में वैल्यू एडिशन किए, बाइंडर, वाटर, उसको मिक्स किए और एक प्रिपेयर्ड मोल्ड में उसको ढाले, सूखने दिए और सूखने के बाद एक चौक बन गया, ठीक है। और भी प्रोसेस है, उसके सहायता से आप लोग चौक बना सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल प्रोसेस है।
तो ये वैल्यू एडिशन करके हम लोग ये चौक बना लिए हम लोग। तो ये है हमारा वैल्यू एडिशन। और फिर उसके बाद इवोल्यूशन सिस्टम क्या है, वो चौक सही बना है या गलत बना है वो इवोल्यूट करना, यानी उसका भी एक इवोल्यूशन सिस्टम डेवलप करना। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन। यानी एक बात सोच लीजिए, एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर हम लोग को इतना कुछ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑपरेशन रिसर्च किसी एक स्पेसिफिक वर्क होने से पहले उसके बारे में कि वो कैसे होगा, किस तरीके से किया जाए कि मिनिमम टाइम लगे, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट मिले, मिनिमम लॉस हो, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च से। ठीक है, वैसे जब आप फोर्थ ईयर में आएंगे तो एक सब्जेक्ट है ओआर, जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च को शॉर्ट फॉर्म में ओआर बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर हम लोग ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, यानी वर्क, कोई काम कैसे करना है उसके बारे में पहले ही रिसर्च कर लेते हैं कि मिनिमम टाइम किस तरीके से लगेगा कि ये कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का ही काम है, यानी कितना बड़ा काम आप लोग करने वाले हैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर बाद में जब आप लोग का एक्सपोजर होगा इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है, ये कब होता है, ये सिर्फ एग्जांपल प्रोडक्शन की बात करते हैं। वैसे स्टैटिकल एनालिसिस किसी का भी हो सकता है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी एक दिन में मान लीजिए हम लोग को 100 टन ऑफ आयरन बनाना है, तो किसी एक स्पेसिफिक डेट पे 100 टन बना, किसी एक स्पेसिफिक डेट पे 102 टन बना, ठीक है, किसी स्पेसिफिक डेट पे कम भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सब डाटा को कलेक्ट करना और उसका एनालिसिस करना, ठीक है, बाय यूजिंग पाई चार्ट और डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम और ब्लॉक चार्ट। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे सो दैट कोई भी एक आदमी अच्छे से समझ सके कब हमारा प्रोडक्शन अप है और कब हमारा लो है, और वो एनालिसिस कर सके कि क्यों हमारा प्रोडक्शन लो हुआ उस स्पेसिफिक डेट पे। ठीक है, तो स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम लोग वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये भी फंक्शन है हमारा एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर। अगला पॉइंट, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। वैसे हम लोग ये इस पे डिस्कस कर चुके हैं, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के पहले पॉइंट पे था हमारा, पहला पॉइंट था हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, यानी किसी एक पर्टिकुलर वर्कर का, मैनेजर का, इंजीनियर का परफॉर्मेंस कैसा है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ वर्क, वो भी इवोल्यूट करेगा कौन, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर। ठीक है, यानी इतना ज्यादा काम है आपको एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर, यानी पूरा प्लांट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, यानी कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे एक प्लांट में और कौन कौन से डिफरेंट मेथड होंगे उन ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का ही फंक्शन है। ठीक है, और एक और पॉइंट है,
supplier selection and evaluation, and it is the most important. Supplier selection and evaluation, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग कहाँ से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, कॉस्ट, ठीक है। तो वो सब सिलेक्शन एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर करेगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सप्लायर सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को वो कितना अमाउंट कितने में दे रहा है, डिफरेंट सप्लायर को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके एक सप्लायर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और जो कॉस्ट है वो हम लोग के लिए मिनिमम हो, ऐसे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सप्लायर सिलेक्शन और उसका इवोल्यूशन, ठीक है। तो आज के इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टुडे इज ओनली फॉर फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग जॉब एवल्यूएशन, इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग ये सब देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो शुरू होगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, थैंक यू।